ناظرین السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسمبلی میں اپوزیشن کے شور و غل کے درمیان 3 بلز کی منظوری۔ بٹی وکرمارکا اور ہریش راؤ کے درمیان ریاستی قرض پر گرما گرم بحث۔ طلباء کی فیس باز ادائیگی فوری جاری کی جائے۔ عدم اجرائی پر بڑے پیمانے پر احتجاج کرنے اکبر اویسی کا اعلان۔ ون نیشن ون الیکشن بل لوک سبھا میں پیش۔ بل دستوری ڈھانچے کے خلاف، صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے کی مخالفت۔ تلنگانہ میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے قدرتی وسائل موجود۔ 5 سال پالیسی پر اسمبلی میں مختصر مباحث۔ جوپلی کرشنا راؤ کا خطاب۔ ملک پیٹ چوراہے پر کار کی تلاشی، گانجا برآمد، 5 افراد گرفتار۔ نارتھ ایسٹ زون پولیس کی کارروائی۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر، ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایس اے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامارن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر، اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ایوان اسمبلی میں BRS اور BJP ارکان کے شور و غل کے دوران اسمبلی میں 3 بلز کو منظوری دی گئی۔ BRS پارٹی نے لاگا چرلا معاملے پر، BJP پارٹی نے 6 گارنٹیوں کی عمل آوری پر مباحث کا مطالبہ کرتے ہوئے شور و غل کیا اور نعرے بازی کی۔ حکومت نے اس شور و غل کے دوران 3 بلز کو پیش کیا، جس سے کسی مباحث کے بغیر ندائی ووٹ سے منظوری دے دی گئی۔
शोरगुल के दौरान यंग इंडिया फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल, यूनिवर्सिटी तरमीमी बिल, तेलंगाना गुड्स एंड सर्विस तरमीमी बिल को किसी मुबाहिस के बगैर मंजूरी दे दी गई। बिल्स की मंजूरी के दौरान ऐवान में शोरगुल जारी था। दूसरी तरफ तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने हरीश राव की तरफ से कांग्रेस हुकूमत पर कर्ज और खसारे के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। ऐवान असेंबली में भट्टी विक्रमार्का ने कहा, हरीश राव को सच बोलने की आदत नहीं, वो जब भी बोलते हैं झूठ बोलते हैं और अवाम को गुमराह करने के लिए सियासत करते हैं। उनका कहना था, असेंबली इंतखाबात और पार्लिमानी इंतखाबात में शर्मनाक शिकस्त के बाद बीआरएस पार्टी के रवैये में तब्दीली नहीं आई। भट्टी ने कहा, हुकूमत ने एफआरबीएम की हद को पार नहीं किया। 1,27,000 करोड़ नहीं बल्कि सिर्फ 51,277 करोड़ ही खर्च दिया है। भट्टी विक्रमार्का ने कहा, बीआरएस कायदीन जानते हैं, अगर वो दोबारा व्हाइट पेपर देखना चाहते हैं तो हम बताने के लिए तैयार हैं। हमने जो भी जवाब असेंबली में दिया है वो बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें कोई भी बात खुफिया नहीं रखी गई। माजी में बीआरएस पार्टी ने अहम बातों को खुफिया रखा था। इससे पहले असेंबली में हुकूमत के खर्च को लेकर साबिक वजीर हरीश राव और नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का के दरमियान नोकझोंक देखी गई। साबिक वजीर हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत के एक साल के इख्तिदार में 1,27,208 करोड़ रुपए का खसारा और खर्च हुआ है। अगर यही हाल रहा तो फिर 5 सालों में ये बोझ और खर्च 6,36,040 करोड़ का हो जाएगा। हरीश राव ने बताया कि एफआरबीएम के तहत तेलंगाना हुकूमत ने 51,277 करोड़ रुपए का खर्च दिया, जबकि कॉरपोरेशन गारंटियों के तहत 61,991 करोड़ रुपए और बगैर जमानत के 10,099 करोड़ का खर्च दिया गया। उनका कहना था, बीआरएस पार्टी की इख्तिदार में सिर्फ 4,17,496 करोड़ रुपए का खर्च था। कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने तलबा की फीस बाज अदायगी की रकम जारी न होने पर सड़कों पर उतरकर एहतजाज का हुकूमत को इंतबा दिया है। असेंबली में वक्फ सिफर के दौरान तलबा की फीस अदायगी की रकम की इजराई के मसले को उठाते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, गुज़िश्ता 4 साल से हुकूमत ने 20 लाख तलबा की फीस बाज अदायगी की रकम जारी नहीं की है। इसकी वजह से अक़लियतों के बशमूल दीगर तबक़ात के तलबा को मुश्किलात पेश आ रही हैं। अकबर ओवैसी ने कहा कि इंजीनियरिंग के बशमूल कई पेशावराना कोर्सेस की तकमील के बाद भी तलबा को सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे हैं। खानगी कॉलेजेस के इंतजामिया भी फीस बाज अदायगी की रकम न मिलने से परेशान हैं और वो स्टाफ को तनख्वाह देने के मौक़िफ़ में नहीं है। मजलिस के फ्लोर लीडर ने कहा, यह एक अहम मसला है, इस सिलसिले में हुकूमत को फौरी तौर पर कुछ न कुछ रकम जारी करनी चाहिए। कायदे मजलिस ने कहा, अगर हुकूमत रकम जारी नहीं करती है तो मजलिस तलबा की तायद में सड़क पर निकलकर एहतजाज करेगी। उन्होंने इस मसले पर तमाम सियासी जमातों को मजलिस के एहतजाज में शामिल होने की तजवीज़ दी। अकबर ओवैसी की बरहमी पर रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा, इस मसले को मुतालिका वजीर से रुजू किया जाएगा, लेकिन अकबर ओवैसी मुसलसल इस बात पर जोर देते रहे कि तलबा की जिदोजहद से तेलंगाना हासिल हुआ, लेकिन आज तलबा का मुस्तकबिल तारीकी में डूब रहा है। कायदे मजलिस ने कहा, कॉलेजेस, तलबा, असातिज़ा हर कोई इससे मुतासिर हो रहा है। साहब, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को मुतवज्जे करवाना चाहता हूँ एक बहुत अहम मसले पर, जो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का है, एससी स्टूडेंट्स का है, एसटी का है और बीसी स्टूडेंट्स का भी है। और ये मसला है फ़ीस रियम्बर्समेंट का सर, एमटीएफ, आरटीएफ, प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। 4 साल से बच्चों की फीस आई नहीं है सर, और उसकी वजह से न सिर्फ स्टूडेंट्स परेशान है बल्कि कॉलेज के मैनेजमेंट्स भी परेशान है। कि अगर आप देखेंगे सर, हर साल करीब 7 लाख, एवरी ईयर ऑलमोस्ट 7 लाख स्टूडेंट्स गेट एनरोल्ड for the fees reimbursement under MTF and RTF, pre-matric and post-matric, sir. For the last 4 years, the scholarship has not been released, due to which the students are facing hardship, their certificates are not being getting released, and the government have instructed to release the certificate. Sir, certificates अगर release कर देते हैं, तो सवाल ये है sir, कि managements कैसा चलाएंगे? A college functions and runs through the fees which is being collected from the students. If the fees is not received on the time, sir, it is not only lakhs of students, sir. I would say, sir, I might be wrong, but please correct me if I am wrong.
20 lakh students are suffering, sir, as of now. 20 लाख स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, SC, ST, BCs, minorities. और न सिर्फ 20 लाख स्टूडेंट सफर कर रहे हैं सर, ऑलमोस्ट 4 lakh teaching staff is not getting their salaries on time, or from months they are not being getting the salaries paid. And also the CM overseas scholarship, sir. I am coming on record and saying, sir, there should be an inquiry conducted, sir. 20 lakh rupees is being given to the students who want to go abroad and have the master study, sir. सर 5-5 लाख रुपए लेकर जो है सो उनको 20 लाख रुपए रिलीज किया जा रहा है. सर आप बताइए सर, ये बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आती है, स्टूडेंट सफर कर रहे हैं, और जो पैसे खाने वाले 5-5 लाख रुपए लेकर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को नहीं देते. सर ये इतना इंपॉर्टेंट और बर्निंग इश्यू है सर, कि ये बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ हो रहा है सर. उनके मुस्तकबिल को तारीकी में और अंधेरे में डाला जा रहा है. सर आई रिक्वेस्ट टू यू सर, काइंडली रिलीज सम अमाउंट सर, सम अमाउंट, कुछ तो पैसे दीजिए. आप किसानों को दे रहे हैं, डेवलपमेंट पे दे रहे हैं, आप तेलंगाना तल्ली के लिए दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, दीजिए सर. लेकिन स्टूडेंट्स के लिए भी तो कुछ कीजिए सर, कॉलेजेस का कुछ कीजिए, वो टीचिंग स्टाफ का कीजिए. इतना बर्निंग इशू है सर. मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत सिर्फ ये नहीं बोलेगी कि वी हैव नोटेड डाउन. No sir, please note it down as an important issue which needs to be addressed immediately, sir, because the students are suffering, the colleges are suffering, and the teaching staff is suffering, sir. And please do not forget, sir, this initiative was initiated by the Congress government, the then Chief Minister Y.S. Rajshekar Reddy Sahab. And it was continued by the TRS and the BRS government. Now you are in power, you have to release. Please do not come with the answer, नहीं ये backlogs है, TRS government 4 साल का छोड़ कर गई. Sir, when Telangana came into existence, sir, that time Andhra Pradesh had also left thousands of crores of rupees for fees reimbursement. The TRS government had cleared that, and it is a responsibility of the government to clear the fees reimbursement. Sir, the students are suffering. If not, sir, I want to come on record and say that. MIM party is going to launch an agitation, and we are going to come on the streets, and we are going to ask all political parties to come and support the student, so that the student do not suffer. The suicide of students in the state of Telangana is 3 times more than the farmers of the Telangana, sir. So now we are just pushing them to commit suicide, sir. See, sir, I have the figure, sir. 5,020 crores are due, and if we calculate this year, sir, it will come to almost 8,000 crores. Are you release 1,000 crores at least, sir? 1,000 करोड़ तो दे दीजिए, चलिए कुछ करिए, कॉलेज मैनेजमेंट को बुलाइए, स्टूडेंट्स को बुलाइए. कुछ नहीं कर रहे हैं सर, ये कैसी हुकूमत चला रहे हैं सर आप लोग. I told Speaker sir, once again the serious is being understood. I will talk to the concerned Deputy Minister. It is a genuine demand. Everybody is suffering for this. Whoever is the reason, definitely I will take it to the Definitely will take it to the concerned minister, the deputy CM sir, finance minister. Thank you sir. Thank you very much. आप सीरियस लीजिए सर इसको, ये इशू को समझिए सर. बच्चों के वास्ते ये मुस्तकबिल है. यही बच्चे थे जो अपनी जान देकर तेलंगाना को लाए सर, और आज इन बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है. ये स्टूडेंट्स ही थे जिनकी वजह से तेलंगाना मिला. ये स्टूडेंट्स ख्वाब देखे कि सुनहरा तेलंगाना होगा, लेकिन क्या है साहब, ये बच्चों का कुछ तो दीजिए सर, कुछ तो दीजिए. मेरी रिक्वेस्ट है, कुछ तो दीजिए, कुछ तो रिलीज करिए सर. The students are suffering, the teachers are suffering, the colleges are suffering, sir. They are shutting down, sir. It is an important issue, sir. Through you, sir, I request all the political parties also to cut across your ideology and come and support MIM in this demand. It is a genuine issue, sir. Please raise for this issue, sir. आप लोग भी उठिए. मैं BRS से बोलूंगा, मैं BJP से बोलूंगा, कम्युनिस्ट से बोलूंगा, कांग्रेस से भी बोलूंगा. प्लीज आइए, लेट अस ऑल कम टुगेदर इन सपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, सर. दे आर सफरिंग, सर. मजलिस के सदर वक्ल पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल के पेश होने को लेकर शदीद रद्देअमल का इजहार किया. बिल के पेश होने के मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, यह बिल दस्तूर के बुनियादी ढांचे के खिलाफ है और यह बिल इलाकाई पार्टियों को खत्म करने का काम करेगा. बैरिस्टर ओवैसी ने इस बिल की मुखालिफत की.
Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 1419. And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for their existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basic of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill. वजीर सियाहत जे कृष्णा राव ने कहा कि 10 साल में बीआरएस हुकूमत ने तेलंगाना तहजीब को तबाह कर दिया है। ऐवान में टूरिज्म पॉलिसी पर मुख्तसर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उनका कहना था तेलंगाना को टूरिज्म हब में तब्दील किया जाएगा। वजीर मौसूफ ने 2025 था 2030 तक हुकूमत ने जो पॉलिसी तैयार की उसका खुलासा करते हुए कहा सियाहत के जरिए रियासत की आमदनी में इजाफा हो सकता है। बीआरएस हुकूमत में 2014 से कोई पॉलिसी तैयार नहीं की थी। पहली बार हुकूमत ने सियाहत की पॉलिसी तैयार की है। इस पॉलिसी के तहत सियाहत के शुबे में आइंदा 5 साल में 15,000 करोड़ की सरमायाकारी और 3 लाख मुलाजमतों का निशाना रखा गया है। तेलंगाना को 5 रियासतों में आगे रखने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। वजीर मौसूफ ने कहा अहम मकामात को तरक्की देना है जिसमें लाड़ बाजार, मक्का मस्जिद, चौमहला पैलेस, सालार जंग म्यूजियम, निज़ाम म्यूजियम शामिल हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना को सियाहती मरकज़ में तब्दील करने के लिए काफ़ी वसाइल मौजूद हैं। वजीर मौसूफ ने कहा सियाहत को फ़रोग़ देने के साथ साथ तहजीब को भी उजागर किया जाएगा। मुख्तलिफ मनादिर को सियाहती मुकाम में तब्दील किया जाएगा। रियासती वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने वक्फे सवालात के दौरान असम्बली में बताया कि किसी भी जिले को नए अजला की फहरिस्त से निकालने का कोई मंसूबा नहीं है। रियासती वजीर ने कहा कि तमाम 33 अजला, 621 मंडल और 76 रेवेन्यू डिवीजन मामूल की तरह काम करेंगे। वजीर मौसूफ ने कहा अरकान की तरफ से रेवेन्यू डिवीजन और मंडल बनाने का मुतालबा किया जा रहा है। उन्होंने कहा गुज़िश्ता हुकूमत ने अजला की तकसीम के दौरान किसी किस्म का कोई ख्याल नहीं रखा। एक असम्बली हल्का 3 या 4 अजला में आ रहा है। रेवेन्यू डिवीजन के मामले में अवाम और अरकान असम्बली को मुश्किलात पेश आ रही हैं। यह हुकूमत उसको सुधारने के लिए तैयार है। कारवान के रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने प्रजा पालना के दौरान वसूल किए गए राशन कार्ड की दरखास्तों का मसला उठाया। असम्बली में जीरो ओवर के दौरान उनका कहना था गरीबों के पास राशन कार्ड न होने से हुकूमत की स्कीमों और मरामत से महरूम हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर नए राशन कार्ड कब जारी किए जाएंगे। कई स्कीमें सफेद राशन कार्ड से मरबूत हैं और इसकी जल्द इजराई से गरीब आवाम को राहत मिलेगी। स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 7-8 महीने पहले नई हुकूमत आने के बाद जो प्रजा पालना के दरख्वास्तों को लिया गया था, जिसके अंदर कसीर तादाद के अंदर वाइट राशन कार्ड के दरख्वास्तों को भी लिया गया था, मगर आज आवाम इतनी परेशान है जो वाइट राशन कार्ड के ज़रिए कई हॉस्पिटल के अंदर आरोग्यश्री कार्ड बनता है। और मैं आपके ज़रिए हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये राशन कार्ड कितने दिन में देंगे और साथ ही साथ वाइट राशन कार्ड ना होने की बिना पर अगर मेडिकल बिल को सबमिट करने के लिए अगर कोई मंडल ऑफिस को जाता है बीपीएल सर्टिफिकेट लेने के लिए, वहाँ पर भी कसीर तादाद के अंदर आवाम की लाइन है। अगर आपके ज़रिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये वाइट राशन कार्ड को जल्द से जल्द जारी करेंगे तो मैं समझता हूँ आवाम राहत की नींद सोएगी और बहुत सहूलत होगी। मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाह रहा हूँ। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने जू पार्क के पास हादसों के खदशात के पेश नज़र फुट ओवर ब्रिज की तामीर पर तवज्जो दिलाई। बहादुरपुरे से आरामगढ़ तक उनका ये कहना था कि ब्रिज की तामीर की वजह से हादसात का इम्कान है, इसलिए यहाँ पर फुट ओवर ब्रिज की ज़रूरत है। हल्के असम्बली बहादुरपुरे के अंदर जो बहादुरपुरे से लेकर जू पार्क तक एक ब्रिज को तामीर किया गया और जू से लेकर एक आरामगढ़ तक के ब्रिज को तामीर किया गया, लेकिन
दोनों ब्रिज के बीच में सारो कंपनी से लेकर जू पार्क तक, जू के सामने तक जो जू को देखने के लिए बच्चे आते हैं, टूरिज़्म आते हैं, वहाँ पर हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन वहाँ पर हादसा होने का बहुत अंदेशा है। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हुकूमत से वहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज को तामीर किया जाए ताकि बच्चों और जो भी टूरिज़्म आते हैं उनके लिए वहाँ पर एक फुट ओवर ब्रिज तामीर किया जाए, सारो कंपनी से लेकर जू पार्क के। शुक्रिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सरमाई तातीलात के लिए हैदराबाद के हकीमपेट एयरपोर्ट पहुंची। उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, वजीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वजीर सीतक्का, रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दूसरे मौजूद थे। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने एसजी की खवातीन को दी जाने वाली साड़ियों के नमूनों का जायजा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर सीतक्का, पूनम प्रभाकर, पी श्रीनिवास रेड्डी, सदर पीसीसी महेश कुमार गौड़, हुकूमत के मुशीर नरेंद्र रेड्डी, अरकान मुकर्रना और आला ओहदेदार मौजूद थे। असम्बली के हाथे में बीआरएस पार्टी के अरकान मुकर्रना स्याह कपड़ों में सुबह हाथों में जंजीर बांधकर एहतजाज करते हुए देखे गए। विकाराबाद, लागा चल्ला में पेशा वाक़यात और फिर किसानों की गिरफ्तारी को लेकर ये एहतजाज किया गया। कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। उधर तेलंगाना कौंसिल के हाथे में बीआरएस पार्टी के अरकान स्याह कपड़ों में देखे गए। के कविता की क़यादत में बीआरएस के अरकान लागा चल्ला किसानों की गिरफ्तारी और हथकड़ी पहना जाने के मामले को लेकर एहतजाज कर रहे थे। रियासती वजीर सीतक्का ने असम्बली की लॉबी में दिलचस्प नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि बीआरएस अरकान असम्बली काले कपड़े पहनकर और हाथों में हथकड़ी डालकर असम्बली में दाखिल हुए। उनके इस एहतजाज पर सीतक्का ने कहा कि बीआरएस अरकान के हाथों में हथकड़ियां पहनाई गईं, लेकिन केटीआर और हरीश राव के हाथों में हथकड़ियां नहीं थीं। उन्होंने कहा एहतजाज में भी बीआरएस कायदीन में इकसानियत नहीं है। इससे पता चलता है कि लोग अपनी अजारदारी को पेश कर रहे हैं। बीआरएस की कौंसिल की रुकून कविता ने कहा मुसनदी ताज के अवाम को नुकसान होगा तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था रेवंत रेड्डी की हुकूमत रहमदिली का मुजाहरा न करते हुए अवाम पर बुलडोजर चला रही है। मुसनदी प्रोजेक्ट पर कौंसिल में मुनासिब जवाब नहीं दिया गया। यह हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है। कविता ने कहा हुकूमत ने आलमी बैंक से 4100 करोड़ रुपए का कर्ज मांगा है। डीपीआर के बगैर आलमी बैंक किस तरह कर्ज देगी, हुकूमत को जवाब देना होगा। रियासती वजीर सीदर बाबू ने बताया कि मूसी रिवर फ्रंट का अहाता 50 मीटर रखा गया है। मूसी प्रोजेक्ट से मुतासिर होने वालों के लिए पुरकशिश पैकेज के अलावा उनकी बाज़ाबातकारी के प्रोग्राम किए जा रहे हैं। कानूनसाज कौंसिल में मजलिस के रुकन मिर्जा अहमद बेग ने मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के मुतासरीन का मसला उठाया। उन्होंने कहा मूसा नदी के लिए कितना अहाता मख्तस किया गया, नदी में जो मजहबी मुकामात व इबादतगाह हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा। नदी में धोबी तबके के सैकड़ों खानदान अपनी गुजर बसर करते हैं। उन्होंने ये पूछा कि आया हाई कोर्ट और सिटी कॉलेज नदी के बगैर जोन में है, यानी कि बफर जोन में है या नहीं। मजलिस के रुकन ने मूसी प्रोजेक्ट पर पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के मौक़िफ़ और कायदे मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की वज़ीर आला से नुमाइंदगी का हवाला दिया। उनका कहना था कि मजलिस इस प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं, लेकिन गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी न होने पाए, उनके मफादात का ख्याल रखा जाए। रियासती वजीर सीदर बाबू ने कहा हाई कोर्ट और सिटी कॉलेज बफर जोन में नहीं है। नदी में हुसूल अराजी के लिए 25,000 रुपये मुरब्बा गज दिए जा रहे हैं। इसके अलावा उन्हें माशी सहारा देने 2 लाख रुपए इमदाद जारी है। एक दूसरा सवाल उठाते हुए मजलिस के रुकून ने सरकारी स्कूल्स में जारी मिड डे स्कीम में अकामत स्कूल की तरह खाना सरबराह करने का मुतालबा किया ताकि सरकारी स्कूल्स में तलबा की हाजिरी का फीसद बढ़ सके। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी वज़ीर आला का नाम भूलने का शाखसाना है। पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा पुष्पा 2 के हीरो एक तकरीब में रेवंत रेड्डी का नाम भूलने की गलती की। उन्होंने सवाल किया कि क्या नाम भूलने की गलती पर गिरफ्तार करेंगे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि असम्बली इजलास 15 दिन चला जाए ताकि अवामी मसाइल पर बहस हो सके। स्कैम फार्मूला इरेस के बारे में बात करेंगे। उन्होंने काबीना इजलास में असम्बली में यहाँ पर उनका कहना था कि असम्बली में मुबाहस किया जाए, काबीना के इजलास में नहीं। गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने हिंदुस्तानी फौज को दुनिया की बेहतरीन तरबियत याफ्ता और डिसिप्लिन फोर्स करार दिया। मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग तिरमलगिरी सिकंदराबाद की ग्रेजुएशन परेड से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मेयारी तरबियत और सलाहियतें कौमी दिफा और सिक्योरिटी में अहम किरदार अदा करते हैं। मिलिट्री कॉलेज के इस 106वें ग्रेजुएशन तकरीब में हिंदुस्तानी तलबा के साथ दोस्त मुल्क भूटान के तलबा ने भी कोर्स की तकमील की।
बेहतरीन वजाहरा करने वाले तलबा को गोल्ड व सिल्वर मेडल अवार्ड्स और तौसीफनामे दिए गए। कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वर्षनी मिलिट्री कॉलेज के असातिज़ा तलबा के सरपरस्त इस तकरीब में शरीक थे। हैदरा के कमिश्नर रवि रंगनाथ ने वाज़ेह किया है कि जुलाई 2024 के बाद जो भी गैर मुसल्लिमा तामीरात हुई हैं उन्हें ही मुनद्दम किया जाएगा। उनका कहना था इस तारीख से पहले जो भी तामीरात हुई चाहे वो कानूनी हो या गैर कानूनी हो उन्हें हाथ नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि ऐसी अफवाहों और प्रोपेगेंडे पर तवज्जो न दें जिसके बारे में कहा जाता है कि हैदरा की तरफ से गरीबों के मकानात को मुनद्दम किया जाएगा। हैदरा के कमिश्नर ने मंगल को कामिनी चिरू और मैसमा चिरू का मना किया। इस मौके पर उन्होंने मुताल्लिक़ा हुकाम को झीलों और तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर जोर दिया। चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी गुलाम अफजल बयाबानी ने रियासती हज कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर उनका कहना था कि अनक़रीब वो हज की जो फीस मुतय्यन होगी उसके बारे में तफसीलात फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि हज जाने से पहले आज़मीन हज को चाहिए कि वो अपनी अना, नफ्स और तकब्बुर को तर्क कर दें। उन्होंने कहा कि बेहतरीन उलमा कराम हमारी रियासत में मौजूद हैं, हमें उनकी खिदमत से इस्तिफ़ादा करना चाहिए। इजलास में हज कमेटी के अरकान, तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी तफसीर इक़बाल के अलावा दूसरे ओहदेदारों ने शिरकत की। साबिक़ा बीआरएस हुकूमत की तरफ से बनाए गए सोलार साइकिल ट्रैक के ढांचे के हिस्से को मुबैना तौर पर मुनद्दम किए जाने की इत्तला मिली है। इस निदामी कार्रवाई के कुछ मनाजिर सामने आए जिसमें बाज़ खम्भों को उखाड़ दिया गया है, लेकिन अभी इस सिलसिले में हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल तो नहीं आया। लेकिन सबराबाद ट्रैफिक डीसीपी ज्वेल डेविस का कहना था नानक रामकुड़ाता रोटरी के पास ट्रैफिक के मसाइल का जायजा लिया गया। गच्चीबौली से माई होम और नारसंगी जाने वाली शाहरा पर मुसलसल ट्रैफिक जाम हो रही है। राहरो आवाम की सहूलत के लिए बाइसाइकिल साइकिल रैंप को निकाला जा रहा है। सिटी कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज के दिन संध्या थिएटर में हुई भगदड़ वाक़े के जख्मी कमसीन बच्चे श्री तेजा की आदत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि श्री तेजा का दिमाग मुतासिर हुआ है। डॉक्टर्स ने बताया कि बच्चे के सेहतयाब होने में वक्त लग सकता है। हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर क्रिस्टा ने बताया कि हम डॉक्टर से मुसलसल राब्ते में हैं। डॉक्टर्स जल्द श्री तेजा की सेहत से मुताबिक हेल्थ बुलेटिन जारी करेंगे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि रियासती हुकूमत श्री तेजा के इलाज के तमाम अखराजात को बर्दाश्त करेगी। इस दौरान पुलिस ने सिंधिया थिएटर की इंतजामिया को भगदड़ वाक़े के सिलसिले में वजह बताओ नोटिस भी जारी की है। गुरुकुल तालीमी इदारों और हॉस्टल्स में तलबा की खुदकुशी के वाक़यात के खिलाफ तलबा तंजीम PDSU की तरफ से असम्बली की तरफ मार्च की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने एहतजाजी कारकुनों को गिरफ्तार किया। एहतजाजी तलबा ज़ेर इल्तिवा स्कॉलरशिप और फीस बाज़दगी की इजराई का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। हज़रत सैयदना ख्वाजा मौलाना मोइज़ुद्दीन तुर्की चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 466वें उर्स शरीफ का संगारेड्डी में आगाज़ हुआ। सदर इंतजामी कमेटी मोहम्मद शौकत अली ने 4TV के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान को बताया कि 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक मुनक़िद होने वाले सिरोज़ा उर्स में बरोज़ चारशंबा 18 और 19 दिसंबर को सरकारी संदल मुबारक और बेरामन संदल मुनक़िद होगा। 19 और 20 दिसंबर जुमेरात और जुमे को ख़वाली का शानदार मुकाबला होगा, जिसमें वारिस साबरी खूंगरवाला मेरठ उत्तर प्रदेश, सनम वारसी संबल मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की पार्टियां हिस्सा लेंगी। 20 दिसंबर जुमे के दिन एक रोज़ा कुश्तियों के मुकाबले होंगे, जिसमें तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के पहलवान हिस्सा लेंगे। मलकपेट पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला पर आत्माकोट देहात से आने वाली कार को गड्डेनारम मलकपेट चौराहे पर रोक कर तलाशी ली और उस गाड़ी से ममनुआ गांजा जब्त किया गया। 5 अफराद को जो पहले भी कई केसेस में मुलविस रहे गिरफ्तार किया गया। ये अफराद आत्माकोट से धूलपेट जा रहे थे, जहां वो ग्राहकों को भारी कीमत पर फरोख्त करने वाले थे। उनकी कार के साथ उनकी निगहबानी के मकसद से एक मोटरसाइकिल में सवार था। बशमूल कार में सवार केस में जुमला 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उनकी गाड़ियां, मोबाइल फोन, ममनुआ गांजे के जब्त किए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साउथ ईस्ट जोन हैदराबाद सिटी पुलिस ए स्वामी ने बताया कि यहां पर डिप्टी कमिश्नर साउथ ईस्ट जोन पानी कांता निगरानी में ये कार्रवाई अंजाम दी गई। टास्क फोर्स ने इस कार्रवाई में मावनत की। शहर के नवाही इलाके हयातनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में खानगी स्कूल के हॉस्टल में 7वीं जमात के तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त लोहित की हैसियत से की गई। लोहित की मौत की इत्तला मिलते ही अफराद खानदान हॉस्टल पहुंच गए और एहतजाज करने लगे। उनका इल्जाम था कि स्कूल इंतजामिया के दबाव की वजह से लोहित ने खुदकुशी की है। अंबरपेट प्रेमनगर ग्रीनलैंड होटल के पास पंक्चर की दुकान में आग लगने का वाक़या पेश आया।
صبح 11 بجے اچانک شارٹ سرکٹ لگتے ہی دکان میں آگ لگ گئی. دکان میں ڈیزل ہونے کی وجہ سے آگ جلد پھیل گئی. اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کا عملہ مقام واقعہ پہنچا. آگ پر قابو پایا گیا. آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز سے رابطہ کریں. کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال 3 فلورز پر مشتمل. 5th, 6th, 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال. آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں, وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر. منگنی, شادی, ولیمہ, برتھ ڈے پارٹیز, اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال ٹولی چوکی حیدرآباد. کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ. پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل, ڈالر ہلز, الکاپور روڈ, موسا انکلیو, ایس اے کالونی ٹولی چوکی, MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی, ایزل ریزیڈینسی, ایس اے کالونی ٹولی چوکی, سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی, دارالامن, ہیپی ہومز کالونی الکاپور, دارالخیر, سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی, ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی, اکبر انکلیو, گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی. انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز, آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے. 35% ڈاؤن پیمنٹ, بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ. کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز ٹولی چوکی حیدرآباد. آپ کا خواب اب ہے حقیقت. عزیز ون ماون, آپ کا نیا گھر, آپ کا نیا مستقبل. 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر, وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر. اسکولز, ہاسپٹلز, شاپنگ مالز کے قریب یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے. اعلیٰ معیار کی سہولتیں, فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ. گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال, 4 لفٹوں کی سہولت, 24/7 سیکیورٹی, اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت. 40% ڈاؤن پیمنٹ, ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ. عزیز ماون ون, جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے. آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ ٹولی چوکی حیدرآباد. اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان. جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم. شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ. 916 ہال مارک کی جیولری, نو ویسٹیج, نو میکنگ چارجز کے ساتھ. اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا, وہ بھی آسان اقساط پر. آپ کا بھروسہ, ہماری پہچان. جوہری, crafted just for you. Gold diamonds and platinum. ٹولی چوکی حیدرآباد. اسمبلی میں اپوزیشن کے شور و غل کے درمیان 3 بلز کی منظوری. بٹی وکرمارکا اور ہریش راؤ کے درمیان ریاستی قرض پر گرما گرم بحث. طلباء کی فیس باز ادائیگی فوری جاری کی جائے. عدم اجرائی پر بڑے پیمانے پر احتجاج کرنے اکبر اویسی کا اعلان. ون نیشن ون الیکشن بل لوک سبھا میں پیش. بل دستوری ڈھانچے کے خلاف. صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے کی مخالفت. تلنگانہ میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے قدرتی وسائل موجود. 5 سال پالیسی پر اسمبلی میں مختصر مباحث. جوپلی کرشنا راؤ کا خطاب. ملک پیٹ چوراہے پر کار کی تلاشی, گانجا برآمد, 5 افراد گرفتار. نارتھ ایسٹ زون پولیس کی کارروائی. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.